Entrepreneurship, when we talk for girls especially, right? If the family support is so important. अब ये अभी भी क्यों चैलेंज है फॉर वुमेन कि ये भी देखना है, ये भी देखना है, एंड इफ यू आर अ बिजनेस वुमन द फर्स्ट प्रायोरिटी समटाइम्स अभी कह देते हैं कि घर है. If the woman decides to do something, I think फिर वो ये जो छोटे मोटे कि मुझे सब वो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, these are all secondary things. And I'm talking about engineers and data scientists and AI experts. 45% women है. Any message to the people who are running corporations or businesses but are not adapting to the change in technology? They're going to be left behind. I think एक तो मैं उनकी फैमिलीज को बोलना चाहूँगी कि उनको सपोर्ट करें सबसे पहले, क्योंकि जब आप कोई चीज़ एक अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य देख रहे हैं जो बहुत एक लंबा लक्ष्य है, उस पर आपको हर तरह के चैलेंजेस आएंगे. Welcome, Komal ma'am. Thank you for coming to this podcast, and it's a privilege for us that आप अपने इतने busy schedule से यहाँ पे आए हैं, and you are going to put light on a lot of things कि जो लोगों को entrepreneurship के बारे में जाननी ज़रूरी है, and especially आप women entrepreneurship के I think torch bearer हैं इस समय, तो वो भी एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि आप in spite of all odds how you have been able to do what you have done till date, and पर सबसे पहले जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं वो सबसे पहले जानना चाहता हूँ ताकि फिर हम पूरा विस्तार में समझें कि ये सफ़र कैसा रहा और ये सफ़र में चैलेंजेस क्या हैं और आप उससे उभर के कैसे आए. So it's a pleasure and privilege to be here. Thank you so much for having me over. I've heard such great things about your show. Thank you. And I was looking forward to contributing to whatever I can to entrepreneurship, to women, and other issues. So my journey, if I go back, I have a background in economics and law. Economics from Lady Shri Ram College, Delhi, and law. ये idea मुझे आया जब मैं law कर रही थी. In my final year of law, when you're finishing your graduation, you start thinking कि आगे क्या करना है. And कोई entrepreneur हमारी family में था नहीं. You're a first generation. I'm a first generation entrepreneur. I mean, mostly my father's side I've come from a bureaucratic family on my father's side. My mom's side is journalism and extremely educated background. So entrepreneurship was a new thing for the family. So law खत्म हो रहा था and लगा कि कुछ अब लॉयर तो बन सकते हैं. आई कैन गो टू रेगुलर प्रैक्टिस, बट कुछ डिफरेंट क्या कर सकते हैं जो अभी किसी ने कुछ खास इंडिया में किया नहीं है. सो इंडिया में आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये नया उससे आ रहा था. It was a new wave. It was very big in the world. Around 2006. I'm talking around 2006-07. So ये बहुत नया एक फील्ड था जो मुझे लगा कि उभर के आएगा, दुनिया में शाइन कर रहा है, इंडिया में भी ये बढ़ेगा. सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. उस टाइम जब मैं डिसीजन ले रही थी, एक बहुत टॉप, जो सबसे टॉप आईपी लॉयर थे इंडिया के उस टाइम, वॉज अ फैमिली फ्रेंड. वो विजिट कर रहे थे, और यही होता है, डेस्टिनी भी होती है कि आप जब कुछ डिसाइड कर रहे हैं लाइफ में, उसी टाइम एक ऐसी शख्सियत आपकी ज़िंदगी में आती है जो उस फील्ड में पाइनियर कर चुकी है. तो उनके साथ मैंने एक दिन बिताया. We had lunch. He asked me, what are you planning to do? And he said, get into the IP field because it's going to be very big. It's already very big. That random, no planning before. So planning तो कुछ चल रही थी, पर उन्होंने मुझे एक बहुत fresh perspective दिया कि आप कोमल ये क्यों नहीं सोच रहे हो. So this is how really the idea of my first company, which I started literally with $1,000 investment from my home office, my parents' house. They gave me एक room मैंने ले लिया, वहाँ पे एक laptop ले लिया, एक assistant रख ली, और मैंने बोला चलो अब जैसे आप गैरेज स्टोरी सुनते हैं स्टार्टअप्स की, इट वाज लिटरली लाइक अ गैरेज स्टार्टअप स्टोरी. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड अराउंड इन 2006-07. आइडिया बिल्ड करते हुए 2008-09 आया हुआ, जब तक मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ टू व्हाट आई वाज डूइंग. And that was really the beginning of my first company. And I'm very proud to say we are 400 plus now. The top engineers and lawyers. We've got a base. We've got a huge presence in terms of clients. We work with all the Fortune 100, 500 companies in the world. We are based in the Bay Area, DC, Japan, Canada. We've just opened up in Germany. So it's a truly global company that we've set up just with
वो आइडिया था उस टाइम, एक सीड आइडिया था, एंड इट्स सो सेटिस्फाइंग टू सी हाउ यू आर एबल टू think of an idea and build it to a scale. You're a perfect example of stay local, work global. और ये हर लोग नहीं कर पाते, बट मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि आप कहीं पे भी रह के कहीं जितना मर्जी बड़ा बिजनेस कर सकते हो. Absolutely. And you have showed it. Absolutely. I think it's about thinking, right? हमने ये जरूर किया कि आई बिलीव दैट व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट, आपको उसको लोकलाइज जरूर करना पड़ता है. प्रोडक्ट और सर्विस को आपको लोकलाइज करना बहुत जरूरी होता है. तो आपका जो पहले तो हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया टीम बिल्डिंग में. सबसे ज़रूरी की चीज़ क्या है सर्विसेज में, जब आप इतनी हाई एंड आप कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉ किस पे वो बैठता है. तो उसके लिए टीम जो आपकी है, यू हैव टू गेट द बेस्ट टैलेंट. हमारे को पहले प्रॉब्लम्स आई, हमें सबने बोला तुम कहाँ चंडीगढ़ में करोगे, गुड़गांव में सारा टैलेंट बैठा है. उस टाइम जो भी 3-4 कंपनीज स्पेस में थी, सब गुड़गांव में थी. तो हमने गुड़गांव में पहले ऑफिस खोला, बट वहाँ पे हमें वी डिडंट लाइक the environment, and we said our home is in Chandigarh, my husband belongs to Chandigarh, I belong to Chandigarh, we had so much family support. हमने कहा अगर हमें entrepreneurship करनी है तो support तो चाहिए होगा बिगनिंग में. तो हमने एक शाम को हमने अपने 15-20 लोग हमारे गुड़गांव में थे, हमने बोला ऐसा है, यहाँ से तो काम नहीं होने वाला, हम तो चंडीगढ़ से ही करेंगे. So literally I remember at night we decided, in the morning our team had moved to Chandigarh. We were at the IT Park Chandigarh for many years, and हमने बहुत टाइम और एफर्ट लगाया कि अगर वो टैलेंट पूल है भी नहीं, हम उसको बिल्ड करें, हमारी ट्रेनिंग इतनी रिगरस हो, हमारी टीम्स का एक्सपोजर इतना बढ़िया हो ग्लोबली, कि हम बेस्ट लोगों को और बेस्ट करें to be able to bring up that level of services that the world needed. So most of your recruited staff is from the Tri-City? I would say 50% is from the Tri-City now, but now, during COVID, we decided to kind of hire from all over India. और हमारा जो, and I was talking about कि आपको किसी स्टेज पे जब आपका बिजनेस बहुत मैच्योर हो जाता है और आपको एक और ग्लास सीलिंग ब्रेक करनी होती है, उसमें what is very important also is to bring in the best talent locally. तो हमने फिर क्या किया है कि टीम्स हमारी हेडक्वार्टर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मोहाली में है. we're also in Chennai, we're also in Gurgaon, we have a presence there. But हमने फिर जैसे जापान में अगर हमने बिजनेस करना है, तो जो हमारा जो लीडरशिप टीम्स हैं वो जापानीज होंगी. अगर हमने जर्मनी में खोला है तो हमारी लीडरशिप टीम्स जर्मन होंगी. You have office in Japan. Yes, as well. Yes, in Germany. US में हमारी टीम्स अमेरिकन्स हैं. So we also realize that it's great to have, you also need a local connect. Communication barrier removed. You need a local connect with very, very high value customers. So it's a good blend of how you're able to hire that talent across the world, but they also work with your local teams. So you have the best talent locally working with global leadership teams, and that's how you're able to scale up your business across the world. That's very true. पर जैसे आपने बताया, you started with only $1,000. Yeah. अब आपके बिजनेस को कोई देखेगा वैसे इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सिर्फ $1,000 पे आपने ये एम्पायर खड़ा किया है. Yes. अब इसी पे मैं एक थोड़ा सा, क्योंकि हर किसी के साथ when I also talk to anyone, every entrepreneurship journey or anything जो हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं, तो it starts with the first step. वो इनिशिएशन लेना पड़ता है. Yes. और वो जो इनिशिएशन के बाद पेशेंस रखनी पड़ती है. करेज लेनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया आपको बोलती है कि आप इतने, you're so well educated, you do your regular job. Up to, of course, entrepreneurship is more celebrated in India. Yes. Right? But I'm talking 2006, 7, 8 when entrepreneurship was not celebrated. It wasn't वही startups and investments, ये वाला ऑरा नहीं था इंडिया का उस टाइम. तब पैकेजेस का ज़्यादा था. Right, पैकेजेस का था कि are you going to go into a global company, top law firm के लिए आप काम करो, and those opportunities were there for me. Right? So at that time, but let me tell you, for girls, let me bring in a perspective. Yes. That entrepreneurship, when we talk for girls especially, right, if the family support is so important. So I mean, when I was growing up, we are two sisters, right, and I can tell you that there was no difference between the way our friends were being raised who were boys and the way we were raised. And हमारे फैमिली में कभी हमें ये नहीं बोला जाता था कि आपने शादी करनी है, like आपकी शादी होगी, अब आप you now graduated, now you're going to, no. We were told very clearly that your aim in life has to be on your feet financially. You have to be financially independent. If you're financially independent, you can marry a donkey. But if you're not financially independent, we will not even let you marry a prince.
That was the thinking that we were brought up That's a with. great thought process. And for us, I had traveled the world with my parents, right? They were not the kind of family ki because you're a girl, you don't travel alone, you don't get exposure. We participated in everything. We lived in different countries, in different cities. We were encouraged to travel on our own. We were encouraged to think on our own. So I think वो जो एक foundation हमारे parents ने हमारे में डाली कि nothing is impossible. So even when I broke the news to my parents that I'm going to be doing this new thing, they're like, what is intellectual property? What is IP consulting? Like, how are you going to sit in India and do it in the US? You're saying your primary market is the US right now. How are you going to do all this? तो ये इम्प्रैक्टिकल चीजें लगती हैं शुरू में. Impractical लगती हैं. Parents थोड़ा सा आपको question तो पूछेंगे, and which is fair enough. But at that time, if my parents had told me we don't agree, आप फिर भी थोड़ा सा you resist and you say, okay, fine, let me think it over. Never for a moment that my parents said, okay, you want to do this? Okay, let's do something. Let's be practical about this. इस पे एक time limit रख लेते हैं. हाँ कि आप 2 साल इसको startup को try करो. ठीक है, चलो 3 साल कर लो. Supposing नहीं हुआ, तो फिर तो you'll go back to work now. So it's a very practical boundary that they laid down for me. I still remember my mom signing the first check for me, Citibank का, because जब मेरे को पैसे आने शुरू हुए, it was all US clients, so आपको एक foreign account चाहिए होता है. Yes. So she signed the first check for me, Citibank का, and I still remember that in 6 months I said, this is the check back, 10x. Right? So this is was a beautiful moment, and she had tears in her eyes. But अगर उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इतना दूर नहीं आ पाती. एट एवरी स्टेज ऑफ माय करियर, अगर वो घर से ही वो रहे कि यार, अगर घर से आपको रेजिस्टेंस आ जाती है कि आप कंफर्ट जोन में रहो, कंफर्ट है तो आपके पास लाइफ में, आप करो अपना रेगुलर, गो टू अ टॉप लॉ फर्म एंड वर्क. तो कंफर्ट को एक तो द इंडिविजुअल हैज टू हैव द कैपेसिटी एंड द करेज टू ब्रेक comfort zones. And when they're breaking that comfort zone, do they get support from, especially for women, I'm telling you this. It can also be a woman who's married and will need that support from a husband. Some women की जैसे आपने बात की, ये थोड़ा सा if you can elaborate कि अब ये अभी भी क्यों चैलेंज है for women, especially in India, ये क्यों चैलेंज है कि घर भी संभालना है, फिर वो एक ऑब्वियस चीजें बन जाती हैं कि ये भी देखना है, ये भी देखना है. एंड इफ यू आर अ बिजनेस वुमन, द फर्स्ट प्रायोरिटी समटाइम्स अभी भी कहा जाता है कि घर है, फिर टाइम बचेगा तो कर लो. सो दैट्स व्हाई समटाइम्स आई फाइंड कि उससे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. तो ये क्या गैप है अभी भी? ये अनफॉर्चुनेटली इंडियन फिनोमेना नहीं है, ग्लोबल फिनोमेना है. बल्कि इंडिया में तो मुझे लगता है कि वी आर लकीयर बिकॉज वी हैव फैमिली सपोर्ट. राइट, इंडिया में अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो जनरली तो हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं. एंड वी हैव आवर ओन पेरेंट्स और वी हैव इन-लॉज हु कैन सपोर्ट अस इन अ वेरी बिग वे. वेस्टर्न कंट्रीज में तो हमारे पास वो सपोर्ट भी नहीं होता है. सुपर न्यूक्लियर, वहां पे सुपर न्यूक्लियर है. एंड either one parent takes the decision to stay at home because sometimes the childcare is so expensive कि आप चाइल्ड केयर नहीं पे कर पाते, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता कि आप कुछ अपना करेंगे. तो आई थिंक वी शुड बी ब्लेस्ड फर्स्ट दैट द कल्चर दैट वी कम फ्रॉम इन इंडिया, वी कम फ्रॉम अ कल्चर वेयर वी आर ऑलरेडी वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज वी आर गेटिंग सपोर्ट. नाउ द क्वेश्चन इज सपोर्ट मिलता है या नहीं. सो आई थिंक द मोस्ट important role that we need to play as families in India is to let women also have their own identity and support them when they're thinking of these things. And if the woman decides to do something, I think फिर वो ये जो छोटे मोटे कि मुझे सब वो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, these are all secondary things. When you make up your mind, the famous book Alchemist, right? Where they say the whole world, the whole universe conspires to help you to achieve something that you really want. जो फिर वो फिल्म में भी यूज हुआ था, शाहरुख खान की मूवी में भी हुआ था कि पूरी कायनात आपके साथ आ जाती है कुछ अचीव करने के लिए. शिद्दत से. तो मेरे को लगता है ये तो this is a fire that you have to have from within. Yes, there are challenges. There could be challenges of cultural thinking, which I think has changed to a large extent now because there are so many role models now that you see, whether it's in women who अच्छा entrepreneurship में देखो, आप women को देखो acting में अब. They have kids, they go back to work. Yes. Right? I mean, look at Kareena Kapoor, look at others. 1-2 kids. Who could think 10 years ago that women who had kids would be accepted back in the industry? पहले माना जाता था कि करियर खत्म है एक बारी शादी. आप entrepreneurship में देखो, नायका की founder आप देखो, at what age has she really
struck gold with the business. So yes, there is yes. no age, there is no gender. To ambition, there is no age and gender. There are no barriers. That change has come already. I think that change has already come in a very big way. और अब तो work from home आ गया है आपका इतना ज़्यादा, आपके पास इतना ज़्यादा अब access to the world है. Sitting online. Us time, so when I started, online was still like it was good, but it wasn't as mass as the access now is. So I think अब जो थोड़े से वो जो inhibitions हमारे थे as women entrepreneurs, वो कम ही हुए हैं world में, ज़्यादा नहीं हुए हैं. So I think if this is the right time, I mean, whether it's startups, whether it's investments, whether it's support systems, whether it's the technology which enables you to do so much online, this is all here right now and in this era. So I think it's made life much easier for more women to become entrepreneurs. And it requires a mindset change. I think a lot of times in life, हम mindset में अपने बहुत ज़्यादा barriers लगाते हैं. But when we start breaking them, Yes. and I'll talk about a few that I also had initially when I started and how I broke those barriers. But that comes through sheer grit for you to break barriers and for you to go higher in जो आपने life. courage की बात की है, Absolutely. वो आपको एक bold होके चलना पड़ता है life Absolutely. में. And also we have to understand that we are in a marathon. We are not in a sprint race. If you're looking Yes. at building something which is world class, you're looking at scaling up a business, you're looking at a career in anything where you want to be on the top of the ladder, it's not going to be a sprint race. It's going to be a marathon. आपसे एक ऑफ कैमरा कुछ मैंने बातें की थी, उसमें आपने कुछ पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंगली बताए कि जैसे आईपी में जब आपने शुरू किया एंड आपका वो सारा एक अलग लाइन से आप किसी और आपने जब शुरुआत की तो ये चैलेंजेस रहे हैं, सारी चीजें हुआ है. हाँ जी. बट एक सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है व्हेन यू हैव किड्स एंड इट इज अ फैक्चुअल थिंग Absolutely. फॉर मेन और women both. हम अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं, while you're raising kids and parallelly you're building up something, you have to travel a lot as well. ट्रैवल भी आपको रखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ ग्लोबल बिजनेस. Yeah. अगर आपका ग्लोबल बिजनेस है तो और इतनी कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, Yeah. तो probably once in 2 months you have to visit the office, चाहे वो जापान में है, यूएस में है, कनाडा में है. Yes. So how have you been able to manage this throughout? Yeah. Because this is again एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है for a lot of women who drop their ideas of business or even the families कि अब पंजाबी में बोलते हैं उन बच्चे ने ध्यान दो. Yeah. तो ये कैसे आप इस चीज के लिए ये करेज निकाल के और क्या आपने ऐसी मैनेजमेंट की कि Yeah. you were able to manage things easily? Yeah, I would not say it's easy at all. And I'll be very candor कि ये आसान बिल्कुल भी नहीं है. और इसमें बहुत extreme work-life balance चाहिए. और इसलिए अगर आप में वो initial fire नहीं है, स्टार्ट करने के लिए और उसको परसिवियर करने के लिए, तो आप नहीं कर पाएंगे. देखो, एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. मेरे लिए जो मैंने बेस्ट डिसीजन ली वो ये थी कि मैंने अपना आई केप्ट माय बेस इन चंडीगढ़. सो my parents and my in-laws have both played a very big role in coming in when I need them. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि my mom already knows my travel plans for the next 3 months. Okay. The minute I am going to leave my house, she's going to be in my house, right? To provide exactly the way, to provide the maximum support to my children as if their mom is there. So right? it's a collective support. It's a collective support. And also I'm a micromanager. So my mom laughs at me कि तुम World Economic Forum बैठी हो और तुम फिर भी तुम्हें पता है 20 minutes से तुम्हें पता है कि where the child is, what is he studying. So so one is your support system that I was talking about. Yes. Secondly, you have to also understand that there are phases in your life when you can't go at the same momentum. Right? तो उसमें जो मैंने आपको बोला कि again my husband plays a very big role. We run the businesses together, right? So one of us can fill in each other's space for a time when one of us is going through a higher momentum. And third, when you build fantastic teams, बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितना खुद कर सकते हो. तो जो मैंने आपको बताया कि आप different countries में इतने capable लोग hire करो कि आपका जाना तो एक choice है. But 80% of the work can be managed by hugely competent people. So you hire people who are better than you, right? And of course,
you have to give up on a lot of things. There are a lot of things I've sacrificed in my career. There are a lot of things that I want to be a part of, but when my work is, my day is 90% split between my work and once I'm home then with my kids. I don't look at my smartphone for 2-3 hours in the evening, right? I've also given up on a lot of get-togethers that I should be in the evening. I've also given up on a lot of invites that I get every evening, right? And- I've also given up on a lot of fun travel that I could have done. I'm only doing business travel, right? आप जैसे बहुत ज़्यादा podcast पे भी नहीं आते तो इसीलिए it's a privilege for us as हाँ well जी. that you are here with us today. So it's a lot of things that you say no to. I've said no to so many things that I would have said yes to if I wasn't working at the level and at the pace at which I was working, and the things that I see for my business, creating impact, creating more leverage for my customers. This is some stuff that I need to do in the next 5 years, 10 years. How will I do it if I say yes to everything? So I think हम कभी कभी जिंदगी में हमें ना बोलना भी आना चाहिए, और मैंने बहुत चीज़ों को जिंदगी में ना भी बोला है. तो इतना ग्लैमरस नहीं है ये वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. Every day you have to curate at the best of your efficiency, right? The first thing I do in the morning with my cup of tea is a list of things I need to do personally and professionally. For the kids, there are 3 lists that gets divided into, and my every day is different. And when I travel for 6 days, I'll try and do what I can do what I would do in 16 days. It's a back-to-back 5-day Monday to Friday travel. जितना काम आप leverage कर सकते हो, you come back home then on the weekend to your kids. So it's an extreme level of balancing, but I think my mental health is also something I worked on consistently, which allows me to do all this. I've balanced things that I enjoy in life, which I need to really do to be able to maintain this momentum. आपकी story से it's not only for women entrepreneurs, even for people like me. I'm personally learning a lot of things, and from women entrepreneurs, I personally feel that you learn even more. Reason is क्योंकि the challenges जो आपके होते हैं ज़्यादा होते हैं, multiplied होते हैं, and then women are created in a way. भगवान ने कहते कि पहले women बनाई थी, फिर दुनिया शुरू हुई थी. right? वो सच्ची बोला जाता है क्योंकि the whole entire universe revolves around women. Absolutely. And if women decide कर लें कि हमने top leadership पे जाना, तो nobody can stop them, and they can change the entire world. Absolutely. The way the entire world feels, thinks, and behaves. That's why the diversity question is so big right now, right? And it's so important. आप diversity, अब हम AI में हैं, अगर आप कोई product create कर रहे हैं, उसमें आपकी women ही नहीं है एक team पे, you're creating a product for a very limited demography. Yes. Right? And I think the world right now is talking about diversity and inclusion. It's for a reason that there has to be a diversity of thought. Women are naturally more problem solvers. They prefer peace and mediation, and intellectually they are as good as men. So there is no reason that women should not be a 50-50, a 50-50 representation at the workforce. And we have, I'm proud to say that we are one of the best places for women to work in India. तो हमारा 45%, and I'm talking about engineers and data scientists and AI experts, 45% women है, right? तो हमने क्या किया as an organization to put this together? Because we were 5% women when we started. This was also a journey for me to get it to 45%. And I'm not talking about, most organizations say we have 40% women. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. किस level पे? Leadership level पे कितनी women है? Entry level पे तो बहुत सारी हैं. Where did you lose them in the pipeline? So we are one of the best companies for women to work, and we've also, as a woman leader, I've been able to do it because I can think from their perspective. I understand कि वो challenges कब आएंगे, कहाँ आएंगे, उसको हम plug in कैसे कर सकते हैं. I think your organization is also a great place to work about it. So that certification you have, and आपने जैसे एक balance बनाया between the ratio of men to women, and वो एक thought process के लिए. It's not only आपने एक बड़ा logical और एक बड़ा valid, बहुत ही valid point आपने बताया कि when you have people from all walks of life, when you have people from all demographics, all age groups, different sexualities, तो उससे perspectives absolutely perspectives कितने आपके पास fresh आते हैं, right? तो अगर आप कोई चीज़ globally create कर रहे हो, तो how can you create it from a perspective which is going to be narrow? आप एक product बना रहे हो जो पूरी दुनिया use करेगी.
आप एक कंसल्टिंग फर्म वो कर रहे हो जहाँ पे आपके क्लाइंट्स वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं, तो आप कैसे उसको एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आप उसको क्रिएट कर सकते हो? यू नीड डाइवर्सिटी ऑफ वेदर इट्स कल्चर। हम कल्चर की बात करते हैं, हमारी टीम्स आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपका कल्चरल मिक्स हो गया। जेंडर वी आर एट 45% women, इंक्लूडिंग लीडरशिप लेवल्स, तो आपका एक जेंडर पर्सपेक्टिव आ गया। एज वी वेरी फ्रॉम 21 to 65। एक Okay. बहुत बढ़िया आपका लीडरशिप, फ्रेश ब्लड भी आया और इतनी मेच्योर लीडरशिप भी आई, एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस भी आ गया, राइट? तो ये जब तक आप ये चीजें, दिस इज लाइक अ मेल्टिंग पॉट, वी आर अ मेल्टिंग पॉट दीज डेज इन द वर्ल्ड. So if you're creating something which is going to be, which you want to take to a level where the world is going to be using it, you better create it from a holistic perspective. And we are very, very mindful of that. That's when very we well hire. said. That the entire process should be very holistic. Yes. Your mindset has to be very holistic. Yes. And जब वो leadership में वो चीज हो तो automatically हर जगह और आप जाती है. देखो कितना मजा आता है काम करने का. It's not for nothing कि भी पता नहीं चलता हम कितना काम कर रहे हैं दिन में, क्योंकि आप देखो कितनी डाइवर्स टीम से आप काम कर रहे हो, कितने आपके पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, फिर आप उसको क्रिएट कर रहे हो, फिर आप उस प्रोडक्ट को टू अ सर्टेन एक्सटेंट लोकलाइज करोगे. हमारा जैसे सॉफ्टवेयर अभी है एआई का, वो पूरी जापानीज लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी है. तो आप सोचो हमने जापानीज लैंग्वेज में जब क्रिएट किया, जापानीज कस्टमर्स को समझा ना पहले क्रिएट करने के लिए, तो हम कितना डीप गए होंगे कल्चर में. अब वो हम समझ ही नहीं सकते टिल वी हैव इंडियन एंड जापानीज टीम्स, कैनेडियन टीम्स वर्किंग टुगेदर. How can I create a Japanese product just having an Indian background? When you start from scratch, तो you build it up step by step, वैसे ही रहता है. एंड शुरुआत में जैसे आप पहले खर्चा निकालते हो कि फर्स्ट एम्प्लॉई, फिर फर्स्ट एम्प्लॉई होता है वो स्पेशल होता है फिर देन फर्स्ट 5, फर्स्ट 10 एंड नाउ यू हैव मोर देन 400 पीपल वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली. तो व्हेन यू लुक बैक और आज की डेट में, तो वो एक कोई वन लाइनर ऐसा कि वो कैसा वो सफर रहा और उस सफर ने आप में क्या बदलाव लाया ये पिछले 18 सालों में, जो एक सफर में, एंड अब आपका पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, टुवर्ड्स लाइफ, और एक जैसे यू सेड गिविंग बैक टू सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये तो एक मुझे एक लगा कि एक बहुत बड़ा चेंज ये एक आता है एक एंटरप्रेन्योरशिप में. इसके अलावा पर्सनली आप कैसे इलैबोरेट इसको कर सकेंगे? सो चेंज तो देखो बहुत मुश्किल है इतना लंबा जर्नी का चेंज सम अप करना, क्योंकि मेरे को लगता है कि आई लर्न, आई अनलर्न every few months now. जिस स्पेस पे हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, we have to be lifelong learners and we have to be lifelong unlearners. नहीं तो हम नई चीजें लर्न नहीं कर सकते. बट 2-3 पर्सपेक्टिव्स में जो बोलूंगी, वन आई वुड से दैट डू लेस, राइट, बट डू इट बेटर. डू लेस बट डू इट बेटर, है ना? मतलब हमारे पास जितने हम एक्सपीरियंस्ड होते हैं उतना हम समझते हैं कि हमारा टाइम एज एंटरप्रेन्योर्स या एज लीडर्स or as representatives of or influencers in our own way, right? Where is our time going? आप ये मल्टीटास्किंग, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो मिथ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप अगर क्वालिटी आपने किसी चीज़ को देनी है तो वो टाइम मांगता है. तो आपको आपकी जो प्रायोरिटीज हैं लाइफ में वो बहुत क्लियर होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई सेड सेइंग नो. पीपल हैव टू लर्न हाउ टू से नो, राइट? और आपका यू हैव टू रीमेजर योर प्रायोरिटीज इन लाइफ एवरी 2 years 3 years. वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं विद योर पेस ऑफ, बहुत कुछ चेंज हो जाता है आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में. कहने देते कि व्हेन यू से नो के शुरू में रूट समझते हो, रूट कहते हैं तो अब तो आसान होता है, उनको पता है ही नहीं, ट्रैवल कर रही होंगी तो मेरे को ना करना बहुत आसान हो जाता है. वो डिप्लोमेटिकली, बट ठीक है, रूट लगता है ठीक है, बट आपको अल्टीमेटली यू आर हियर फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड. अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे अपने बिजनेस को या दुनिया को? तो यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. एंड एज वुमेन आई वांट टू से अगेन, लॉट ऑफ टाइम्स वी पुट आवरसेल्व्स इन द एंड एट लास्ट. यस, वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स इन द फ्रंट. जैसे जब खाना भी होता है तो सबको खिला के खुद खाना. एग्जैक्टली. और उसके बाद अगर आप वैसे इतने बिजी हो तो शायद आपको खाने का टाइम ही ना मिले, तो फिर हाउ आर यू गोइंग टू सस्टेन योर प्रोडक्टिविटी, राइट? सो आई थिंक वन इज टू डू लेस बट डू इट. क्वालिटी लाओ हर चीज में जो आप कर रहे हो, जो आप काम भी कर रहे हो, इट शुड बी एट द हाईएस्ट क्वालिटी, राइट? अगर आप टाइम लगा रहे हो पर्सनली अपने बच्चों के साथ, उसको भी हाईएस्ट क्वालिटी पे लाओ, क्योंकि आपके पास टाइम उतना ही है. और जितने आप ज्यादा यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल, अकम्प्लिश, उतना आपका टाइम ही कम होगा. द ओनली थिंग दैट यू डोंट हैव इज टाइम इन योर हैंड्स. सो आई एम वेरी केयरफुल अबाउट
mostly I'm very conscious, I want to use the word, that you have to have mindfulness in where your time is being spent. And that priority will change for you every few years. And you have to define it for yourself. And it's a fine balance between your contribution to your business, your family and society. आपको इन तीनों को बहुत ब्यूटिफुली, तीनों में कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है. मैं बोलूं कि मैं सारा टाइम बिजनेस को दूंगी, बट इफ आई कैन कंट्रीब्यूट टू a talk where I think women will be inspired, it is my responsibility as an Indian to do that, to prioritize that, right? If my business is, if my kids have exams, very important exams, my priority will become my children at that time, vis-a-vis a few extra hours in office. But आपको contribute तीनों को करना है. अगर आप तीनों को contribute नहीं कर रहे, you're not a holistic person. पर ये जो बैलेंस होता है, मतलब sometimes even Sometimes हिल भी जाता है. हिल भी जाता है. हाँ, बिल्कुल हिलेगा. कोशिश जैसे पूरा स्केड्यूल बनाना है, पूरा कैलेंडर बनाना है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती इसलिए है. मैंने बोला कि आपको माइंडफुल होना पड़ेगा. Mindful. अगर हम माइंडफुल होएंगे तो हम उसको 100 से, हम उसको 20 से 60 तो ला सकते हैं ना. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी जरूरी है. I'm not there as yet. मेडिटेशन वाला मैं नहीं करती हूँ. I'm a restless soul. I just want to do too much in life. So मैं भी restless soul हूँ. But what gives me a lot of peace is gymming. Like if I don't go to the gym, I will hit the gym 4 days a week, irrespective of how busy I am. That is my meditation in the morning. No phone, weight training, walking 8,000 steps a day. This is my meditation, right? Maybe even getting 20 minutes to read a book before I sleep. Socializing, spending time with people I love to spend time with, where I can just be myself. These are all ways for me to heal naturally. I love my spa. I will go to a massage once in 2 weeks. Wherever I'm in the world, I will find time. These are my ways of So taking everyone care of myself. has to find their own ways. The ikigai. Ikigai, yes. You have to find your Yes. ikigai, where Yes. it's a conversion of what will give you money, right? What you're good at and what the world will value. तो आपको अपनी ikigai को खुद ढूंढना पड़ेगा. वो आपके लिए कोई नहीं ढूंढ सकता. और जितना आप लाइफ को देखते हो, जितना आप लोगों को देखते हो, जितना आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के सीखते हो, उतनी क्लैरिटी आपके माइंड में आती है कि आपने किस चीज को यस की कैटेगरी में डालना है, किसको नो में डालना है. एंड द सेकेंड थिंग, आई थिंक दिस इज ऑन माई पर्सनल साइड, राइट? ऑन माई प्रोफेशनल साइड, व्हाट वी आर रियली वर्किंग ऑन राइट नाउ इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट. जब हमने ये IP कंसल्टिंग वर्क स्टार्ट किया, तो आपको पता होगा, एनीवन हूज हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ going through a process of filing a patent or a trademark, बहुत ज्यादा expensive भी है, manual भी है, super specialized काम है. Yes. So जब हमने ये किया, तो we used to work with all the, I can't name companies, but you think of any company in the Bay Area, in Germany, in Switzerland, top आपके जो 100 companies हैं, we worked with all of them. पर हमने ये realize किया कि ये जो सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वर्ल्ड है, ये सिर्फ कई लोगों तक सीमित है. कई लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं. ये थोड़ा शुरू से अनअप्रोचेबल लगा लोगों को. एग्जैक्टली. आप मुझे बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस पैटेंट ट्रेडमार्क फाइल करने का, कितना आपको वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि आपको लगता है कि स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है जी. और आप सोचो कि जब हमने ये नई चीज बनाई, एक्सेल स्काउट, हमने ये जो प्रोडक्ट AI इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाया, ये हमारा कोविड में हमने बिल्ड करना शुरू किया. ये थिंकिंग कोविड में आई कि कुछ ऐसा भी करें जो which makes this whole process accessible to anybody in the world. आप इनोवेटर हैं, आप इन्वेंटर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, बट आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्रिएशन से लेके ग्रांट तक लेना चाहते हैं कि वो आप कैसे उसको बाद में आप उसको मोनेटाइज करो, वो आप कैसे कर सकते हो. उसके लिए हमने ये excelScout.ai प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कोविड की ड्यूरिंग. तो मैं आपको इनफैक्ट बोल रही थी कि आपको भी ट्राई करना चाहिए. आई गिव यू एक्सेस. इसमें आप अपना कोई भी आइडिया डाल सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में या जापानीज में. एंड व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू इज इट विल गो थ्रू ऑल द वर्ल्ड्स पैटर्न्स एंड रिसर्च पेपर्स दैट एग्जिस्ट, और वो आपको बताएंगे कि आपको ये फाइल करना भी चाहिए या नहीं. क्योंकि क्या होता है, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं होती लोगों की, लोग कुछ भी फाइल कर देते हैं विदाउट इवन सीइंग कि वो एक आइडिया एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में या नहीं. It will save a lot of time. It will save you time, it will save you so much cost. क्योंकि अगर Yes. आपने इतना पैसा लगाया और बाद में रिजेक्ट हो गया तो उसका क्या फायदा था. तो अभी क्या होता है, क्योंकि लोगों को करना नहीं आता, इतना स्पेशलाइज्ड है, वो बस वो
कुछ भी उनके दिमाग में आता है और लॉयर उसको फाइल कर देता है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कोई नोवाइस भी अपना आइडिया डाल के उस खुद देख सकता है कि और ये आइडिया मेरा यूनिक भी है या नहीं, या उसको फिर इम्प्रूव कर ये सकता है। आइडिया आपको कोविड के दौरान ही देना ये हमने देखो क्योंकि है तो ये हमने सर्विसेज को प्रोडक्टिफाई किया है थ्रू एआई। हमें लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी द टेक्नोलॉजी दैट्स गोइंग टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म हाउ वी डू वर्क। तो हम इसको अपनी इंडस्ट्री में क्यों ना लगाएं जब हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है आईपी इंडस्ट्री का। हमने देखा है, हमने इन्वेंटर्स के साथ भी काम करते हैं, हम इनोवेटर्स के साथ भी करते हैं, हम कंपनीज के साथ भी करते हैं, स्टार्टअप्स के साथ भी करते हैं। हमें उसमें कुछ चैलेंजेस दिखे कि ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैनुअल है, सुपर स्पेशलाइज है, इसको हम आसान कैसे करें ताकि इसका इम्पैक्ट ऐसा हो कि दुनिया में कोई भी इसका बेनिफिट ले सके। तो ये आइडिया जब हमें आया तब हमने इसकी R&D करनी शुरू की। 3-4 साल हमने लगाए इसकी R&D में। we were very blessed that we became a part of the top AI programs in Canada. We were accepted. Mars है, यस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लैब्स है, वी बिकेम अ पार्ट ऑफ ऑल दोस प्रोग्राम्स। और हमें बहुत सारा टॉप एआई यूनिवर्सिटीज इन कनाडा से, कुछ इंडियन आईआईटी से हमें सपोर्ट मिला टू डेवलप द टेक्नोलॉजी। और हमने इस प्रोडक्ट को 2 साल पहले लॉन्च किया और हम इसको रियली इंडिया के लिए यूज करना चाहते हैं कि इंडिया में अभी पैटर्न्स जो हो रहे हैं वो हम बढ़ रहे हैं बट उस स्पीड पे नहीं बढ़ रहे जो अदर कंट्रीज में है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंट्री टू ऑल्सो ग्रो एज एन इकोनॉमी। तो हम चाहते हैं कि हम थ्रू टेक्नोलॉजी एंड वी आर वर्किंग ऑन थिंग्स वेरी वेरी क्लोजली कि इंडिया अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैटर्न्स ट्रेडमार्क्स वगैरह को 10x की स्पीड पे आपने increase कुछ कर पाए। रेशियोज बताए थे, वो ग्लोबल के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से भी बहुत बड़ा अंतर बहुत है। बड़ा अंतर है। जी। हमारे बढ़ रहे हैं बट हम अभी वो ग्लोबल जो हम कहेंगे टॉप 5 या टॉप 10 कंट्रीज जितना कर रहे हैं उतना हम नहीं कर ये पा अभी रहे भी हैं। ना सोच है कि ये पेटेंट लेना तो बहुत मुश्किल है। ये हाँ, पेटेंट तो बिल्कुल सिर्फ यही सोच हम बदलना चाहते हैं हाँ, कि पेटेंट सर्च करना, देखना आपका आइडिया यूनिक है या नहीं, अपने आइडिया को इम्प्रूव करना एआई के थ्रू, और पूरी पेटेंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन आपको एआई तैयार कर दे, अमेजिंग। है ना? क्योंकि यही चीजें अगर ये सबसे बड़ा तो यही चैलेंज लगता है। यस, उसके बाद आपको बस थोड़ा सा उसको ह्यूमनली एक अटर्नी से रिव्यू करवाना पड़े, तो इतना ही एआई आपका स्कोप इतना कंप्लीट कर देगा कि आप सब कुछ खुद कर पाएंगे। और Okay. एंड में आपको एक अटर्नी चाहिए होगा जिस कंट्री में आप फाइल कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसमें देयर आर सर्टेन लोकल लॉज दैट यू हैव टू फॉलो। तो वो बिल्कुल टाइम आपका, और ये जो पूरी मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ ये घंटों में हो जाता है। फ्रॉम आपने आइडिया डाला टू आपकी ड्राफ्ट हो गई पेटेंट एप्लीकेशन, ये 1 घंटे में हो जाता है। और अगर मैं आपको अभी बताऊं, अगर आप इसको कोशिश करेंगे, लॉयर के पास जाएंगे, कंसल्टेंट के पास, किसी फर्म के पास जाएंगे, तो दिस इज अ 3 to 6 month process right Yes. now. So that is the impact that we are creating in terms of time. Quality is excellent. It's not just कि टाइम बच रहा है, कॉस्ट आपका आधा हो गया और क्वालिटी आपकी बढ़िया आ रही है। तो आप सोचो कि कितनी इनोवेशन, वॉल्यूम और क्वालिटी हम यूनिवर्सिटीज में और इंडिया में हम ला पाएंगे। क्योंकि when you go outside of India to countries like Japan, US, Canada, all these countries, और patents तो ऐसी regular normal सी Absolutely. phenomena है, and they have बिल्कुल। so many grant, even students they have so many patents with them. Yes. तो हमारा हाँ। मिशन एक ये भी है कि हम हर इंडियन यूनिवर्सिटी में ये टेक्नोलॉजी लेके जाएं। तो इनफैक्ट हम 7 IITs के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो हमारी Great. टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रही हैं। एंड दे हैव रिपोर्टेड कि कैसे जहां वो कुछ 100 पैटेंट्स फाइल कर पा रहे थे, अब वो 300-400 नंबर्स में जा रहे हैं साल में। Already 3-4x. और ये भी नहीं है कि 3-4x पैटेंट्स हो रहे हैं, ये भी हो रहा है कि क्वालिटी बढ़ रही है, रिजेक्शन कम हो रही है। तो ये चीजें ऑलरेडी रिपोर्ट हो रही हैं फ्रॉम वेयर द सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड। Filing to registration ratio बढ़ गया है। फाइलिंग टू रजिस्ट्रेशन भी बढ़ गया है एंड पेटेंट ग्रांट रेशियो भी बढ़ गया Grant है। ratio सर। है ना? सो मतलब क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और वॉल्यूम पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो आप सोचो कितनी ज्यादा हमारा रिच यूनिवर्सिटीज, मतलब टेक्नोलॉजिकली कितनी रिच यूनिवर्सिटीज हैं। वी हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, मेडिकल कॉलेजेस। तो मैं आपको बोल रही हूँ 10x हमें करना है इसको इंडिया में। अगर हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे टेक्नोलॉजी ला पाएंगे और हम ये टेक्नोलॉजी इन्वेंटर्स के पास ला पाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स के पास, इनक्यूबेटर्स के पास, स्टार्टअप्स के पास, so this will be like a revolutionary thing where we will be able to pace up with the innovation targets that we have for our country. So impact पे हम काम भी करना चाहते हैं। ये एक छोटा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप मैसेज दें कि
आईपी कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ जी। आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा है हाँ। लोगों को कि अगर आप कोई चीज यूनिक बना रहे हैं और अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट, तो आपके पास कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। एक तो इशू ये आ सकता है कि आप सोच रहे हैं कि यूनिक है वो, बट आपने चेक ही नहीं किया कि वर्ल्ड में किसी और के पास वो टेक्नोलॉजी थी और आप उनकी टेक्नोलॉजी को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसमें तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपका पैटेंट ग्रांट होता है या ट्रेडमार्क्स आप लेते हैं ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए, वो आपको एक बहुत सॉलिड प्रोटेक्शन देती हैं आपके बिजनेस को, क्योंकि वो आपकी बिजनेस की यूनिकनेस दिखाती हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, प्रोडक्ट पेटेंटेड है, मतलब आपने कुछ बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी उसमें लगाई है जो दुनिया के पास है ही नहीं। तो अगर वो कोई भी यूज करता है दुनिया में, उनको आपको लाइसेंसिंग देना है, दे हैव टू पे यू मनी फॉर दैट, राइट। ट्रेडमार्क में भी अगर आप ब्रांड आप कह रहे हो कि आपको ग्लोबल ब्रांड बनाना है, you have to protect your brand has to be correlated with the name of your name. पर So नॉर्मली these are बोला very जाता है important कि things. इंटरनेशनल अगर आप ग्लोबल ट्रेडमार्क्स ही करने हैं तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो ये सच्चाई है, मतलब कि इतने तो इसलिए एक्सपेंसिव? ही टेक्नोलॉजी का इसमें लाना अच्छा। बहुत जरूरी है। जैसे पैटेंट का कॉस्ट तो 5x है ट्रेडमार्क से, कॉपीराइट से, राइट। हाँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम जो टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा है अब एआई इज बीइंग, आप एआई को हर चीज में यूज कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर रहे हैं, आप उसको प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर रहे हैं, आप ड्राइविंग करते हुए भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप म्यूजिक सुनते हुए भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जब नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो रिकमेंडेशन भी आपकी एआई बेस्ड है। तो व्हाई शुड वी नॉट थिंक, why should every person in every industry not think कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं? How do we democratize our industries by enabling more people to have access to it? तो हमारी भी थिंकिंग यही थी कि हम इतने लोगों के साथ काम करते हैं, बट कई लोग तो ये सोच ही नहीं सकते। उनके आइडियाज माइट बी ब्राइटर देन लार्ज कंपनीज, पर उनके पास वो लेवरेज ही नहीं है उसको एक्सेस करने का। तो आई वुड से दैट दिस इज द टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी इज सो पावरफुल दैट ऑल ऑफ अस नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आवर यूज केसेस इन आवर इंडस्ट्री। आप फार्मा में काम कर रहे हैं, शायद आपको भी कोई गैप लग रहा है फार्मा में, जो शायद आप रेवोल्यूशनाइज कर पाए टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म के थ्रू। कोइंसिडेंटली जस्ट बिफोर दिस पॉडकास्ट आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय टीम कि यार मुझे एआई इम्प्लीमेंट करना है, ये कैसे कैसे कर सकते हैं, एंड Yeah. कोइंसिडेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राइट Yeah. नाउ। So I think every person in the world is thinking like this, right? तो मतलब अगर आप चीजों और इम्पैक्ट क्रिएट करना टेक्नोलॉजी के थ्रू इजियर होता है, क्योंकि वो स्केल अप, आप यू कांट स्केल अप people in at a momentum where you can scale Yes. up technology. यस। तो आई थिंक इफ ऑल ऑफ अस स्टार्ट थिंकिंग कि हम कैसे कंट्रीब्यूट, हम इंडस्ट्री में है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम कैसे जो पीपल उस थॉट प्रोसेस के पहले पार्ट ही नहीं हो सकते थे, हम कैसे उनको इंक्लूसिव बनाएं। एंड देन ऑल्सो अबाउट how does that match with our vision for the country? What are thought leaders in our country thinking? What is the government thinking कि आईपी को कहाँ लेके जाना है, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क्स कहाँ पहुंचने चाहिए 5 साल में, वहां पे आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? Artificial intelligence is a buzzword, AI is a buzzword, and the people who are doing good in AI are technically doing great now. Yeah, So it's creating wealth, it's creating wealth as well as a lot of visibility. visibility. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपलर वर्ड्स इफ यू कैन एक्सप्लेन कि ये है क्या और ये क्यों जरूरी है? सबसे आसान मैं आपको डेफिनेशन दूंगी, इट्स बीइंग एबल टू टीच अ मशीन और अ कंप्यूटर डू व्हाट अ ह्यूमन वाज डूइंग, राइट। तो आप पहले स्पॉटिफाई पे पहले आप म्यूजिक सुनते थे नॉर्मल, राइट। अब आप स्पॉटिफाई पे सुनते हो तो आपको एआई समझ आती है कि आपको म्यूजिक कैसा पसंद है, तो वो आपको रिकमेंडेशन दे रही है। तो पहले आप ह्यूमन कर रहा था ये काम, अब थोड़ी सी मशीन ने करना शुरू कर दिया है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने प्लेटफॉर्म का कि पहले इंजीनियर ही ये काम कर सकता था या लॉयर, अब वो मशीन 50% वो मशीन ने करना शुरू कर दिया है। तो in a way AI is artificial intelligence. It's why is it artificial? Because it's computer intelligence, it's not human intelligence, right? But what is happening is that you've seen अब chat GPT आप देख लीजिए, it's a revolution। मतलब chat GPT के 100 million users हो गए थे in a few months, Yes, yes. right? अब chat GPT क्यों एक revolution है? क्योंकि it's being used by anyone and everybody, whether you are a child, a 6-year-old child, or you're a 80-year-old grandmother, everybody is using that technology। इसलिए ये एक कस्प है टेक्नोलॉजी का, जितनी भी revolution है। ह्यूमन वेस्टफुल एक्टिविटीज थी जिसमें हम वेस्टफुली टाइम करते थे, वो एआई कुछ मिनटों में कर रहा है जो हम कई दिनों में करते थे।
तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अब आपको देखना है कि आप पेटेंट फाइल करोगे या नहीं। अब आप सोचो आपको इसके लिए कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वर्ल्ड में, 100 मिलियन डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपको पहले पढ़ के देखना है कि आपका आइडिया यूनिक है या नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि अगर ये ह्यूमन काम करेगा, तो अगर मैं अपने इंजीनियर को या पेटेंट एक्सपर्ट को बैठा दूंगी, तो वो उसको 3 हफ्ते भी लग सकते हैं ये पढ़ने में। अब एआई को आपने ट्रेन किया है, स्पेशलाइज्ड मतलब एआई होता है, एआई के ऊपर होता है, फिर आप एक स्पेशलाइज्ड उसको फाइन ट्यून करते हैं अपने अपने डेटा सेट पे। अब एआई वही चीज, मैंने आपका आइडिया डाला, उसने जो उसकी कॉम्प्यूटेशनल पावर है वो ह्यूमन से ज्यादा है, तो उसने आपको 5 मिनट्स में वो आउटपुट दे दिया कि ये आप क्या कीजिए, ये 20 पेटेंट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके आइडिया के बहुत पास है, इनको 20 को पढ़ लीजिए, मिलियन ना पढ़िए। एआई पे इवॉल्व करने से आपके बिजनेस पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट किया? बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज नाउ आई कैन सी अ माइंडसेट शिफ्ट इन आवर कस्टमर्स. They are all telling us now that we understand that the work that you're doing is very high end consulting, but जहाँ पे आप 100 घंटे लगाते थे, क्या आप उसको 40 घंटे में कर सकते हो AI के थ्रू? Because clients know that if you're able to use the right technology, every business will become more productive. Every business will become more efficient. So it is, we are calling it digital transformation. And you can have more time for innovation. You can have more time for innovation. So what do I want my engineer to read documents, or do I want him to spend time with you one-to-one? Understanding what is your business strategy and how that sits together with your patent. Where would I want my engineer to, and where would the engineer want to spend time? जो ह्यूमन आईक्यू है वो इमेजिनेशन में, क्रिएशन में, उसमें ज्यादा लगे, जो जितना भी Absolutely. वेस्टफुल काम है वो जो मशीन आपका कर रही है। ग्राइंड वर्क है, जहाँ पे the AI might be more powerful than you are in a Yes. shorter time, आप अपना टाइम लगवाइए इंजेन्युइटी पे, Errors भी कम होंगे। क्रिएटिविटी पे, हाँ। रिव्यू पे, हाँ, right? It's like having an assistant. It's like having a very powerful assistant with you all the time. it's like Tony Stark having Jarvis. Exactly. So, I mean, when you use Chat GPT, I'll give you an example. पहले हमें कहीं present करना होता था, तो you would have your teams working on your presentation. क्या उसमें content? अब आप Chat GPT में आप कुछ पूछिए कि give me a format for a presentation. I have to address this global audience. This is the nature of my audience, right? It's a 20-minute keynote. Please give me an outline of my speech. It's just amazing what it gives you. You don't need an assistant for that. So it's a question of how the human AI collaboration is going to be very important. Where is the human using it, and understanding where it is more powerful and where you are more powerful, and combining that in your workflow. Any message to the people who are running corporations or businesses but are not adapting to the change in technology? They're going to be left behind, because you think of my company now, right? Like we are now using AI to democratize the patent innovation process, right? अब हमारे पास एक टूल है आइडिया क्यू, उसमें आप कोई भी R&D प्रॉब्लम डाल दीजिए, वो आपको आइडियाज देगा कि वो आप R&D प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। R&D प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आपके 100 लोग हैं R&D टीम पे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, क्या बेटर आइडिया हो सकता है, बट आप सोच मोस्टली एक नैरो पर्सपेक्टिव से रहे हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारा दुनिया में जितना इनोवेशन डेटा है उसको लेवरेज कर लिया, और AI आपको सजेस्ट कर रहा है कि अच्छा आपका ये प्रॉब्लम है ना, आप ये जरा इसमें जरा डालने की कोशिश कीजिए। उसने आपको कुछ मिनटों में उसके 30-40 सॉल्यूशंस दे दिए। अब मैं ये नहीं बोल रही कि वो सॉल्यूशंस आप R&D टीम को टेस्ट करने पड़ेंगे उसकी वायबिलिटी पे, बट लुक एट द टनल ऑफ थिंकिंग दैट इट ओपनड अप फॉर यू। आई गिव यू एन एग्जांपल। अभी मैं एक बहुत बड़े इवेंट पे आई वाज डूइंग अ की नोट इन दिल्ली लास्ट वीक, जापानीज इंडियन इवेंट ऑन IP। तो उसमें हमने एक एग्जांपल दिया कि एक मर्सिडीज कार का पेटेंट था। उसमें उनका पेटेंट ये बोलता था कि कुछ वो UV रेज स्प्रेस करेंगे ताकि वो थोड़ी सी कार में कुछ अच्छी प्रोटेक्शन रहे फॉर मतलब इन्फेक्शंस वगैरह ये वो ना हो। तो उन्होंने आइडिया डाला हमारे सॉफ्टवेयर में। तो उसने ये बोला कि आपने ये तो सोच लिया कि UV रेज आप डालोगे जब कोई कार में नहीं होगा, इट विल इम्प्रूव, पर आपने ये नहीं सोचा कि जब आप वो UV रेज स्प्रे करोगे तो जो कार्स की जो सारी पोस्ट्री है वो खराब हो जाएगी। तो उसके लिए भी तो आपको कुशन कवर्स लाने पड़ेंगे जो कवर करेंगे।
ओके तो आप सोचो कैसे उसने, it was a thing that the human was not thinking of. आइडिया क्यों ने आपको बताया कि आप इस डायरेक्शन, ये 10 डायरेक्शन में भी सोचो। तो जब आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हो, आपकी R&D प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको लुक एट द इंजेक्शन ऑफ आइडियाज यू हैव। उसमें से लॉजिकल आउटपुट आएगा पूरा। उसमें एक आउटपुट आएगा, उसके बाद ऑफ कोर्स अगर 10 आइडियाज हैं, आप उससे मशीन के साथ आप प्ले अराउंड विद इट एंड देन यू बॉइल डाउन टू मे बी कि ये 5 आइडियाज हमें वायबल लग रहे हैं, चलो अब हम ह्यूमन आई से इसको देखते हैं कि ये वायबल कितना होगा। पर जैसे इसी वजह से कई बार लोग डरते भी हैं कि एआई हमारी नौकरियां ले जाएगा, या एआई मतलब लोगों पे राज करने लग जाएगा। हाँ, तो देखो हर बार जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन होती है, तो कुछ जॉब्स जाती हैं, बट कुछ नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो अभी अगर आप स्टडीज पढ़ो तो देर आर 100+ जॉब्स दैट डिडंट एग्जिस्ट यस 5 years ago। एमएल हो गया, डेटा एआई साइंटिस्ट प्रॉम्प्ट हो हो गए, गया। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हो गए, ये आपने कभी सुने थे इसके टाइटल्स 5 साल पहले? सो द So क्रक्स it's जो retuning। जो क्रक्स है कि आपको इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। देखो अब आप इवॉल्व नहीं कर रहे, आपका कंपेटिटर ये सारे एआई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, आप बताओ कंपेटिटिव एज किसके पास रहेगा, राइट? क्योंकि हम अपने वर्ल्ड में भी देखें तो ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा डेटा ऐड हो रहा है, कॉस्ट ऐड हो रहा है, बट प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि डेटा को इतना ज्यादा डाइजेस्ट करके समझने का ही एक चैलेंज है। तो एआई प्लेज अ वेरी बिग रोल देयर। तो प्रोडक्टिविटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ गोल्डमैन सैक्स, मैकिंजी, all these studies say that AI has the potential to add $7 trillion to the GDP in the next 10 years. And where is that coming from? $7 trillion. $7 trillion। And where is it coming from? It's coming from increase in productivity. तो increase in productivity कैसे होएगी? जब आपके engineers उस पे काम करेंगे जिस पे करना चाहिए। जब आपके lawyers जब legal काम कर रहे हैं, तो वो जो research का काम है वो AI कर देगी, और वो बैठ के आपकी applications high quality draft करेंगे। जब डॉक्टर्स इतना टाइम नहीं लगाएंगे देखने में, कि वो उनको इतना टाइम स्कैन करने में नहीं लगाएंगे, जो एक्सरेज हैं, एआई बता देगा कि ये 5 रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम लग रही है, आप इसमें डीप जाओ। कोमल, आप इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, यू आर आल्सो एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ कहाँ क्या पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं आपका प्रोफाइल रीड कर रहा था, सो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देखने में लगा कि 5 पेज सिर्फ इसी के हैं कि आप कहाँ पे क्या क्या पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा वो इसलिए, सो दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड। हाँ एंड जी। जी हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना प्रोफाइल डाइवर्स रखूँ, क्योंकि एक होता है, मतलब एज आई टोल्ड यू, बिजनेस जरूरी है, बट लर्निंग तभी आती है जब आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल और बिजनेस से भी निकलते हैं। जब आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, आप बहुत कुछ सीखते हैं। और ये इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, जो इतनी प्रेस्टिजियस फोरम्स हैं, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गई, मैंने इंडिया को यूनाइटेड नेशंस पे रिप्रेजेंट किया है। Amazing. डिड अ पैनल इन जिनीवा, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में। आई एम CNBC यंग टर्क ट्वाइस। मैंने जो AI पॉलिसी ड्राफ्ट की गई थी इंडिया के लिए, उसमें आई वाज अ पार्ट ऑफ द 11-12 कमिटी। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम, जो आप सोच सकते हैं जो बेस्ट इंटरनेशनल फोरम्स वर्ल्ड के हैं, वहाँ पे या तो मैंने की नोट दिया है। आई एम अ फोर्ब्स जापान फीचर, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू बी फीचर्ड इन फोर्ब्स जापान, क्योंकि That's actually huge. हमारी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जापान में इतना बड़ा है कि जापान, फोर्ब्स रीच्ड आउट टू मी फॉर अ स्टोरी। तो जापानीज में आपको मेरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी उसके अंदर। तो मैंने बहुत सारे Probably will use an AI tool to translate. तो मैंने बहुत सारे लाइफ में, अभी मैं नीके न्यूज़पेपर है, वहाँ पे देवर, आई वाज इन जापान लास्ट जून, 25-30 इंडस्ट्री टॉप्स CEOs of Japanese companies, the only woman to speak and the only woman to be invited from India to speak at Nikkei. तो मैंने बहुत सारे, मैं बोलूँगी मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं लाइफ में, जहाँ पे मुझे लगा है कि मेरी लर्निंग को इमेंसली हेल्प करेगा। या मैं ऐसे लोगों के साथ होंगी जहाँ पे मेरे को बहुत एक नई तरह की थिंकिंग मिलेगी, जो मैं फिर बाद में अपने बिजनेस या पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। आई एम ऑल्सो YPO मेंबर, यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन अगेन। साल लगा देते हैं मेंबरशिप अप्रूव करने में। सो आई वाज अगेन, आई एम अ पार्ट ऑफ YPO ऑल्सो, आई एम अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ CI कमिटीज एट रीजनल लेवल, नेशनल लेवल। तो
काफ़ी चीज़ों में मैंने अपना I like to contribute to a lot of things. But you're giving your time to the right places. Right places. Yes. पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने नो भी बहुत जगह मैं करती हूँ. अभी मेरे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने they invited me for a talk this week in April. हार्वर्ड इल्यूमिनाई की टॉक थी. अगेन मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसी को मिली. दे हर्ड माई टॉक देयर ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैं I had to say a no this month. To Harvard. I said a no. I mean, I felt stupid and whatever, but it couldn't work out professionally. But they said, we'll have you next year. So these are amazing. I think practical people they they acknowledge and understand. understand. They understand that there was a travel problem. Hmm. They said, we'll have you next year. Hmm. So I have been very picky about where I'm giving my time. Outside my work, what kind of forums am I a part of, where am I contributing. But इसमें मेरे को बहुत हिचक भी थी पहले. मेरा फर्स्ट एक्सपोजर पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे कंट्रीब्यूट करने में हुआ. एंड आई हैव टू गिव माय हस्बैंड 100 on 100 इन दिस, बिकॉज ये एक एनडीटीवी का एक इवेंट था जहाँ पे दे वर टाइंग अप विद द एम्बेसी ऑफ इजराइल. एंड इसमें it was a big event. People had to pitch their idea. And I was very wary. तो क्या हुआ, मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर दिए. तो इजराइल जाने का जब I was selected as the only woman from India to Tel make it to Aviv. the round, Tel Aviv. अब इजराइल जाना था and my younger son fell sick. And as a mother, I said, this opportunity will come later, I am not going. My husband at that time was traveling to the US. He cut short his entire trip and he said that this is an opportunity you are not going to say no to. And you will attend the event. And I am going to be back before your flight gets out. So I know how tensed I was on that flight because वैसे कोई इतना नहीं था. He had fever, but as a young mother, it's a very big thing, right? जो आपने Your child. support की बात की ना वो. तो वो जो support उस time, and my mom also said कि just go. We're so proud of you. I'm coming home right now. So वो जो मुझे support मिला उसने, that was my first experience of being able to pitch in a very big room with NDTV live. To be able to pitch something that I was passionate about, and that opened my doors to being able to having the confidence to say yes to these forums. And I think public speaking होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो एक skill होता है जो आपको develop करना पड़ता है over a period of time. तो बहुत सारे ऐसे थे. मैं आपको बता सकती हूँ, यूनाइटेड नेशन जब मुझे जाना था, I was so nervous. 7 people from all over the world, एक इंडियन, UN में आपने कुछ बोलना है पैनल पे. These can be very nervous-wracking moments also for a lot of us. बट मैं कोशिश करती हूँ हर बार कि मैं अपने को थोड़ा सा पुश करूँ, थोड़ा सा अपने को कंफर्ट जोन से निकालूँ कि चलो नई चीज़ है, कुछ सीखोगे ही ना, कुछ नई चीज़ सीखोगे आप, कुछ आप कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ आप सीख के आओगे, उसको फिर आप अप्लाई करोगे. Always willing to learn. Always, as I'm saying, we have to be lifelong learners, and we also have to sometimes learn to break our own mental barriers. Believe me, as humans, हम कई बार सोचते हैं कि हमें सब हम पता नहीं- है, बहुत पता चल गया. या ज़्यादा पता चल गया या हम ये कर नहीं पाएंगे, हाँ, ये है ना. तो again, वो yes. हम अपने बैरियर्स हाँ. माइंड में इतने क्रिएट कर देते हैं कि एक्चुअली वो इतना मुश्किल होता नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं. हाँ 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 हाँ. तो मेंटली आपको, अगर आप मेंटली आप बैरियर्स को ब्रेक कर सको थोड़ा सा, you can come in that comfort zone where you feel that you have to take new challenges in life. तभी आपके ग्रे सेल्स भी इवॉल्व हो पाते हैं. Yes. क्योंकि सेम चीज करनी, उस पे ही बेटर हो जाना is not holistic development of a person. You have to throw yourself in different situations, different challenges. That is when आपकी एक learning curve जो होती है वो एक different level पे जाती है. That's very true. Yeah. The theme of this podcast is inspire me. So through your story, especially women entrepreneurs or women in general who want to do something in life, they'll get inspired, and they are already inspired watching this podcast. एक inspire me mantra आपकी तरफ से चाहिए for women entrepreneurs or women who want to achieve something in life, कि वो work life balance कैसे रख सकते हैं और वो जो courage कैसे लेके आ सकते हैं. आई थिंक एक तो मैं उनकी फैमिलीज को बोलना चाहूंगी कि उनको सपोर्ट करें सबसे पहले, क्योंकि जब आप कोई चीज़ एक अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य देख रहे हैं जो बहुत एक लंबा लक्ष्य है, उस पर आपको हर तरह के चैलेंजेस आएंगे, कभी थोड़े से लेस सीरियस, कभी ज़्यादा सीरियस. तो उसमें एक तो आई थिंक देयर फैमिलीज हैव टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल, दैट दे एक्ट एज फैसिलिटेटर्स
and not as barriers in their thinking and career. Which is both the parents as well as in-laws and Absolutely, the husbands. family, Oh. whoever in your life plays an important role. Even kids, everyone. Even kids, even children, right? अब अगर I mean, so that is the most important things. And I think और अगर आपके पास support supposing नहीं भी आया, supposing you wish for a supportive family but you don't have it, right? Then I think mantras for whether it's women entrepreneurs or it's male entrepreneurs, वो mantras same ही रहते हैं कि आपको courage I think is the most important thing. करेज बहुत ज़रूरी होती है. एक आई वुड ऑल्सो से कि एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा यंग एज पे शुरू करो, थोड़ा सा आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है, आप थोड़ा सा पंगे ज़्यादा ले सकते हो, Yes. है ना, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है टू सक्सीड, थॉट प्रोसेस वैसा डेवलप हो जाता थॉट है. प्रोसेस डेवलप हो जाता है, थोड़ा सा उसको यंगर एज पे स्टार्ट करते हो. मुझे लगता है दिस इज माय एक्सपीरियंस, सम पीपल से यू आर बेटर एंटरप्रेन्योर्स व्हेन यू आर मोर मैच्योर. But I think वो जो एक for women, it's easier to take the plunge when they have more time and when they're younger. I think I would always say that it should start, your entrepreneurship spirit should start younger in life. And of course, nothing substitutes, hard work. Nothing substitutes perseverance. Nothing substitutes courage. And also, it's about the right idea, and do you have the determination to take it to a certain level. और आप ये मत सोचिए कि आपके पास कोई आइडिया है वो बहुत छोटा है. इट डजेंट मैटर. मे बी आपका जो आपका एम्बिशन है वो ग्लोबल कंपनी का नहीं है. आपका एम्बिशन है कि आप यू आर एबल टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. It is your own mantra of success. Don't benchmark yourself too much against. आजकल हर चीज यूनिकॉर्न कंपनीज raised Yes. $100 million of investment. हम बहुत ज्यादा कभी we get too influenced by the bigger stories, by the glamour, the success stories. आपका हाँ जी. अपना एक मंत्रा है of success. आपका एक अपना मंत्रा है of what you want to do in life. And I think if you've come to this world and you want to create something, you want to achieve something, you want to give to society, you want to create a business, it's your life. Even it's if one you are life. impacting 1,000 lives, 100 भी that's कर all. दो, हाँ. है ना, ये आपकी लाइफ है. You're a unique person. Don't benchmark. But जो आपको satisfaction देता है, जो भी आपका वो एक स्केल है, वो आप कोशिश जरूर करो. कामयाब होगे नहीं होगे, कितने कामयाब होगे, वो सब हमारे हाथ में नहीं होता बहुत बार. बट वो कोशिश करनी बहुत जरूरी है लाइफ में. नहीं तो वो कभी कभी भी रिग्रेटेड लेटर इन लाइफ कि हम ये करना चाहते थे बट हम नहीं कर पाए. तो वो कोशिश करनी और उसको 100% देना बहुत जरूरी है. उसके बाद there are so many factors that play in our success in life. That's very But true. that foundation can only be laid by you. And you have to lay that foundation for yourself. वो not आपके for लिए कोई anyone और else. आके नहीं करेगा, खुद ही करना खुद ही पड़ेगा. करना पड़ेगा. ये तो खुद ही, तो आपकी ही जर्नी है. आप ही अकेले आए हैं, आपने अकेले ही जाना है. और आपने अपनी डेफिनेशन ऑफ लाइफ, सक्सेस, क्या आप करना चाहते हैं, वो आपकी डेफिनेशन है. तो ये जरूर कोशिश जरूर कीजिए. बाद में जो होगा वो देखेंगे. Yes. This is the first time we are introducing in our show one health mantra as well. So being such a busy entrepreneur, you take care of your health as well. Yeah. तो वो एक health mantra भी अगर if you can share. I think एक तो हेल्थ मंत्रा ये है कि आपकी वाइब्स पॉजिटिव होनी चाहिए लाइफ में. आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर आपकी थिंकिंग और वाइब्स आपकी पॉजिटिव हैं, यू आर नॉट अ जेलस पर्सन. When somebody does very well, you feel great about the person. मतलब आप दूसरों की खुशी में खुश है हो. ना, आप लोगों की प्रॉब्लम में भी आप वहां पे हैं. you're a जी. good human. जी. राइट. तो अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, आपकी वाइब्स पॉजिटिव हैं, आप लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यू आर देयर फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आपकी मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही नहीं सकती है. राइट. और हम बहुत केयर करते हैं कि हम खाते क्या हैं आजकल, हमारी कैलोरीज कितनी है, हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, बट हम अपनी मेंटल हेल्थ को क्या फूड दे रहे हैं वो हम लोग आजकल सोच ही नहीं रहे हैं. Yes. थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ also social media, I feel at times, time with yourself, right, and having a positive bent of mind in life, being positive about life, I think does wonders to your mental and emotional health. Staying away from negativity and negative people. And also having a sense of self-confidence. You should be able to carry yourself in any situation with a smile on your face. So I think confidence is your biggest weapon.
And of course, physically, if I talk about it practically, as I said, I do believe in weight training. I believe in gymming. So for me, some kind of exercise, at least 5 days a week, irrespective of if you're traveling, you're not traveling. If I'm traveling, I'm not going to the gym, I will do my 10,000 steps. Right? So I think you own it to yourself that you take care of yourself, because उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में if your health is not good. जो आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी होलिस्टिक हेल्थ. Yeah. So holistic health यही होती है आपका. Holistic health is your physical health, your mental health and your emotional health. आजकल physical health को हम काफी we give it a lot of importance, पर आपकी mental emotional health की क्या वो है, उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते लाइफ में. You have to be a happy person and you have to have good positive thoughts. You have to manifest what you want in life very positively. And I think it definitely happens. Thank you so much. It's been lovely hosting No, you I had today. such a wonderful, पता ही नहीं चला, I think I didn't realize how much the time has been, but it was wonderful interacting with you. No, it has been very, very interesting and बहुत motivating है. Thank you. And I'm super sure that people are going to love this episode. Thank you. Thank you so much for having me over again. No, it's a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you.